بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیگل اپڈیٹ کے سیشن میں ہم بات کریں گے انگلش لیگل ٹرمز ان اردو. الفابیٹیکلی ہم موو کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایکسیپٹینس. اس کا مطلب ہے قبولیت. اس کے بعد ہے ایڈجر ملتوی. یہ عمومی طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایڈجرمنٹس کے حوالے سے کہ آج کی عدالتی سماعت ملتوی ہو کر اگلی مقررہ تاریخ تک ملتوی ہوتی ہے تو اس کو التوا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کے لفظ ایڈجر استعمال ہوتا ہے. ایڈورس پوزیشن قبضہ مخالفانہ کہ ایک پارٹی کے اگینسٹ جو دوسری پارٹی اس پہ اپنا کلیم کرتی ہے کسی پراپرٹی کے پوزیشن کا تو اس کو ایڈورس پوزیشن کہتے ہیں. ایفیڈیوٹ بیانتی لیگل ٹرم میں ایفیڈیوٹ کا بہت فریکوینٹ استعمال ہوتا ہے. کہیں بھی کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دینی ہو کوئی پروسیجر ہو تو وہاں ایفیڈیوٹ ساتھ دیا جاتا ہے. ایفیڈیوٹ ہوتا ہے کہ کورٹ میں بیان کرنے والا شخص جو اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اوپر حلف اسٹیٹمنٹ ہے منوط حلف کے ساتھ. اس کے اندر ایک فکرہ لکھا جاتا ہے کہ میں حلف حلفاً بیان کرتا ہوں حلف قسماً بیان کرتا ہوں. یہ ہے بیان الفی. ایگریوڈ پارٹی متاثرہ فریق کسی کے کسی ایکشن سے کسی عمل سے کسی کو جو گریوینس پہنچتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی متاثر ہوتا ہے تو متاثر ہونے والا شخص متاثرہ فریق ایگریوڈ پارٹی کہلاتی ہے. ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل پرسن بھی ہو سکتے ہیں. ایگریمنٹ ٹو سیل ایگریمنٹ ٹو سیل ہے جسے ہم معاہدہ بے بھی کہتے ہیں اقرار نامہ معاہدہ بے بھی کہتے ہیں اور سٹھا بھی کہتے ہیں. ایگریمنٹ سیل ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے. لیٹس سپوز کہ الف کی پراپرٹی ہے اور وہ بے کو بیچ رہا ہے. ان کی ایگریمنٹ کی جو رقم طے ہو گئی لیٹس سپوز کہ الف کا رقبہ 5 کنال ہے زرعی رقبہ اور وہ 5 کنال وہ بے کو بیچ رہا ہے. اب الف بے کو ایک ایگریمنٹ لکھ کر دے گا کہ میں نے یہ 5 کنال پراپرٹی بے کو معاہدہ کر دیا ہے سٹھا کر دیا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہا ہوں اور اس کی رقم ہے جو ٹوٹل کاسٹ 10 لاکھ روپے ہے. جس 10 لاکھ میں سے بے جو ہے وہ الف کو 5 لاکھ دے رہا ہے. اب 5 لاکھ باقی کب دے گا اس کے لیے ان کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ بے مورخہ ایکس وائی زی کوئی بھی ڈیٹ ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ دسمبر 25 2023 کو بے باقی 5 لاکھ پے کرے گا اور الف اس کے حق میں 5 کنال اراضی زیر معاہدہ جو ہے اس کی اسپیسیفکیشن آ جاتی ہے اس کے اندر کہ فلاں کھیوٹ میں ہے فلاں موزہ میں ہے اور اس کا یہ اسکیئر نمبر ہے یہ مربع نمبر ہے یہ اس کے باؤنڈری والز ہیں مشرق میں فلاں مالک ہے مغرب میں فلاں ہے شمال میں جنوب میں اور اس کے یہ میجرمنٹس ہیں اور یہ فرنٹ سڑک پہ لگتا ہے اس کا لیٹس سپوز کہتے ہیں 350 فٹ کا فرنٹ ہے. تو اس فرنٹ اور اس لمبائی کے ساتھ یہ 5 کنال زمین الف جو ہے وہ بے کو دے رہا ہے اور بے 5 لاکھ ادا کر رہا ہے اور 5 لاکھ ادا کرنے کے بعد بے باقی رقم ادا کرے گا 25/12/2023 کو. اس وقت جب باقی رقم وصول کر لے گا الف تو بے کے حق میں انتقال یا رجسٹری روبرو ریونیو آفیسر دینے کا پابند رہے گا. اور اگر بے نے بر وقت
रकम अदा ना की, बाकी मांगा 5 लाख, तो मुआवजा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मुआवजा खत्म होने के बाद एडवांस सेटलमेंट जो है वो अदा शुरू 5 लाख रुपए बाकलिफ ज़ब्त तस्वर होंगे और किसी किस्म का क्लेम पे का नहीं सुना जाएगा। इसी तरह अगर बे पैसे देना चाहे अपनी डेट पर और अलिफ के दिल के अंदर कोई नियत ही हो, कोई बैड इंटेंशन हो और वो इनकार करते ठीक है जी मैं आपको बकाया नहीं वसूल करता ना, मैं इंतकाल देता हूँ, तो इस सूरत में बे के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाकर अपना तकमील मायदा का दावा करे वहाँ पर, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पर उससे अपना कोर्ट में रिमेनिंग अमाउंट जमा कराएगा और अपने केस को प्रूव करेगा गवाहान के थ्रू, जिन गवाहान के सामने ये मुआहदा हुआ है, और वो करने के बाद वो अपना कोर्ट उसको डिग्री कर देगी और वो अमल दरामद के अंदर जाकर अपने नाम इंतकाल कराकर रिमेनिंग अमाउंट खजाने सरकार में जमा करा देगा कि जब भी वो अलिफ आएगा अपनी रिमेनिंग अमाउंट लेगा और वहाँ से उसकी इंटरेस्ट भी हो जाएगी। तो जिसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल एलिज्ड मुबैन, कि जब कोई फरीक किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम ले पर कि फलां ने फलां जुर्म किया है, फलां कानून शिकनी की है, तो इसको हम बोलते हैं एलिज्ड मुबैना। जब तक वो साबित नहीं हो जाता वो एलिज्ड होता है, और जब वो साबित हो जाता है वो जुर्म बन जाता है। उससे पहले क्या होता है, वो इल्ज़ाम होता है। अमेंडमेंट, तरमीम। अमेंडमेंट वेरीफाइड टर्म है जो बार बार लॉ में यूज होती है। कभी प्लेट में अमेंडमेंट हो रही होती है, कभी कोर्ट्स में अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, कभी लॉ में अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, बेसिक लॉ में अमेंडमेंट हो जाती है। तो अमेंडमेंट का लफ्ज़ जो है वो तरमीम बड़ा प्रैक्टिकली यूज होने वाला लफ्ज़ है। एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट, एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को कहते हैं। दहशतगर्दी की जो कोर्ट्स हैं, जो दहशतगर्दी के सदेबात के लिए कायम की गई हैं, उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स कहा जाता है। साइड एप्लीकेंट, जस्टिस सिस्टम के अंदर जब भी किसी ने इंसाफ तलब करना हो तो वो साइड होता है, एप्लीकेंट होता है। किसी भी अथॉरिटी के सामने जो दरख्वास्त दी जाती है उसमें लिखा जाता है कि साइड हस्पिटल्स करता है किसी अथॉरिटी के पास। इसी तरह अगला जो हमारे पास है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, बकाया जात महकमा माल। महकमा माल के जो बकाया जात जिसने अदा करने होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू उस शख्स के जिम्मे वाजिब अदा है कि आप बयाने की मद में भी हो सकते हैं, वो किसी दीगर वसूली किसी भी मद में काबिल वसूल रकम जो महकमा माल ने किसी से वसूल करने हो उसे कहते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। आर्बिट्रेशन कौंसल, सालसी कौंसल, ऐसे कौंसल जो दो फरीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा करती है, उनके मामले को सॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करती है, वो सालसी कौंसल कहलाती है। नेक्स्ट टर्म अटैचमेंट, कुर्की, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट। जब सरकार ने किसी से कोई रकम वसूल करनी हो और वो मदयून जो है, देने वाला जो है, जो बाकीदार है, उसने प्रॉपर वे में कोऑपरेट ना किया हो कानून से और रिलेक्टेंट हो, देने से इनकारी हो या ना देने वाला रवैया हो, तो एक
प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है कानून में, उसको नोटिस किया जाता है, नोटिस करने के बाद उसको वारंट किया जाता है, वारंट पे भी नहीं होता तो लास्ट में जो भी अथॉरिटी है, रेवेन्यू अथॉरिटीज भी कुर्की करती हैं, कोर्ट्स भी कुर्की करती हैं, क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बहुत सारे मैटर्स में गवर्नमेंट की ड्यूज बकायदा वसूल करने होते हैं, और जो बाकीदार वो अमाउंट अदा ना करे तो फाइनल जो आखिरी रास्ता होता है वो ये होता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो महकमा माल के पास होना है, और महकमा माल उस मालिक की जिसने बकायदा दे तो उसकी ज़मीन को पुरके कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं, और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पेमेंट के लिए उसकी जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है वो पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आए कि फलां डेट को, फलां तारीख को, फलां प्रॉपर्टी, उसमें सारी स्पेसिफिकेशन होती है कि फलां शख्स है, उसने फलां मद में, आए वो रेवेन्यू किसी केस में या कोर्ट के किसी केस में, अगर उसके खिलाफ इजराय डिग्री चल रहा है और वहाँ वो प्रॉपर पेश ना होकर अपनी अदायगी नहीं कर रहा, तो फिर डेफिनेटली कोर्ट भी बजरिया रेवेन्यू ऑफिसर ही मोस्टली कुर्की कराती है, तो उसमें एक्शन हो जाता है, नोटिस हो जाता है, पब्लिक नोटिस होता है, अखबार इश्तिहार होता है, नुमाइंदगी का परचेस मांगी होती है, और जो जनरल प्रोसेस रूटीन का है उसके ज़रिए शुरू होगा भी होता है, और सारे मामला जो लीगल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं किसी चीज़ के लिए इस सिलसिले में, तो अडॉप्ट करने के बाद फिर किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे जिससे वो गवर्नमेंट की ड्यूज वसूल हो सकें, या फिर उस डिग्री के इजरा में रिकवरी पूरी हो सके जिस हद तक डिग्री चल रही है, डिग्री का इजरा चल रहा है। तो ये है अटैचमेंट का सीन। इसी तरह से जमानत प्रैक्टिस करने वाले हमारे दोस्त जो हैं, स्टूडेंट्स का तो बेल से कम ही वास्ता पड़ता है, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली अपने लॉ के सब्जेक्ट्स में बेल को बड़े करीब से देखा होगा, बेलेबल वारंट्स में भी देखा होगा, नॉन बेलेबल वारंट्स में भी देखा होगा, बेल बिफोर अरेस्ट में भी देखा होगा, बेल आफ्टर अरेस्ट में भी देखा होगा, प्री अरेस्ट बेल, और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम के अंदर बेल का कंसेप्ट ये है कि जुडिशियल कस्टडी से किसी प्राइवेट श्योरिटी को उस मुलजिम को हवाले कर दिया जाता है। कानून का मुतमा नज़र ये होता है कि जब बेल दायर की जाती है तो कोई जामिन होता है, वहाँ पर श्योरिटी होती है जो अदालत में ये जमानत देती है कि जब कोर्ट इस स्पेसिफिक शख्स को तलब करेगी तो वो ऐसे शख्स को जिसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कोई मुकदमा ज़ेर समाअत है, कोई FIR है, तो ऐसे शख्स को वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने का पाबंद होगा। ये श्योरिटी जामिन होती है, क्योंकि उससे पहले वो जुडिशियल कस्टडी में होता है। जुडिशियल कस्टडी टू प्राइवेट कस्टडी में मूव हो जाने वाले शख्स को, इस प्रोसेस को बेल कहते हैं। और ये सबूरी अमानत भी होती है और आफ्टर अरेस्ट भी होती है, सबूरी को प्री अरेस्ट कहते हैं, और जमानत होती है रेगुलर उसको आफ्टर अरेस्ट कहते हैं। और इस तरह बेल का बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल भी है और सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में। आज हमारा टॉपिक बेल बॉन्ड, जमानतनामा, मुचलका जमानती। जो जामिन है जो वहाँ पर मुचलका जमा कराता है कि कोर्ट ऑर्डर कर देती है 2 लाख रुपए के मुचलकों पर जामिन को कि फलां शख्स को रिहा किया जाता है जमानत पर, तो ये जो डॉक्यूमेंट होती है इसको बेल बॉन्ड कहते हैं। बेलिफ कुर्की वाला, ये अदालती एक एहलकार होता है जो बेलिफ कहलाते हैं और कुर्की वगैरह के प्रोसेस में सारा रोल प्ले करते हैं। बैंक्रप्सी लॉ, कानूनी दिवाला, 22 तासुब कि जब कोई
तासुब कहीं महसूस होता है तो फिर उसको कहते हैं कि 22 में से ब्लड मनी दियत, किसास और दियत ये इस्लामी कंसेप्ट में है कि जब कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उस कातिल के लिए दो रास्ते हैं। अगर कानून के अंदर प्रूव हो जाता है, ट्रायल में प्रूव हो जाता है कि मुलजिम ने वाकई कत्ल किया है तो डेफिनेटली उसकी सज़ा तो मर्डर की सज़ा तो यही है कि उसको फांसी दी जाएगी, सज़ा मौत उसको दी जाएगी। लेकिन दूसरा रास्ता है शरीयत ने जो दिया है कि अगर कत्ल होने वाले शख्स के वारसा इस चीज़ पर रजामंद हो जाएं कि उनको दियत दे दी जाए, खून बहा दे दिया जाए, ब्लड मनी जिसे कहते हैं वो दे दी जाए, तो उसको हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, कोर्ट्स अनाउंस करती हैं दियत की अमाउंट जो कि चांदी के साथ रिलेट करती होती है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मजलिस माल इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टर्म में, पाकिस्तान की अंदर सबसे बड़ा जो रेवेन्यू की अथॉरिटी है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, बार सबूत, कि जिस शख्स पे ये बार हो कि वो ये साबित करे, उसे कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम पार्टी पर है। onus of proof on OPD, OPP, onus of proof on plaintiff, onus of proof on defendant। तो ये बड़ा लीगल एक टर्म है जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ, OPP, OPD। जब इश्यूज फ्रेम होते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि इशू नंबर 1 आगे होता है OPP, onus of proof on plaintiff, OPD, onus of proof of defendant। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मनसूखी, कैंसिलेशन के लिए जो हमारे पास उर्दू टर्म यूज होती है वो मनसूखी की है। कैंसिलेशन ऑफ बेल भी है, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट भी है। कैंसिलेशन किसी भी चीज़ को मनसूख कराना लीगली तौर पे तो वो मनसूखी होगी। कैंसिलेशन या रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले पावर ऑफ अटॉर्नी को देखेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं मुख्तियारनामे। मुख्तियारनामा जो होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। मुख्तियारनामे का मतलब है कि एक शख्स ने किसी काम के करने के लिए अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, वक्त ना होने की वजह से या किसी दीगर वजूहात की बिना पर किसी दूसरे शख्स को, ऐसे शख्स को जो उसका इंतहाई मुतमिद है, उस शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। और ये दो तरह का होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। एक है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा खास, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए होता है, जैसे अमूमी तौर पर अदालतों में दिया जाता है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी, बगर्स, पहले मुकदमा, ये एक बड़ी जनरली अदालतों में इस्तेमाल होती है। लेकिन एक और मुख्तियारनामा होता है जिसे मुख्तियारनामा हम कहते हैं, जिसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आप समझे इस तरह से कि अमूमी तौर पे अगर किसी दोस्त का सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई ताल्लुक है, प्रॉपर्टी के लेन देन से ताल्लुक है, तो वहाँ पर लोग किसी अपने मोतमिद को, भाई को, बेटे को, दोस्त को, अजीज को, एक्सवाइज किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं कि उनके ब्याह पर जाकर वहाँ सेल के बयान भी दें। उसके अंदर लिखा होता है मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें, सेल करें, पेमेंट्स वसूल करें, मुआहदा जात करें, उन प्रॉपर्टीज़ में अगर वो दावे हैं तो अदालतों में पेश हो, वकील हायर करे, वहाँ पर दावा करे, जवाब दावा दे, प्रोसीडिंग करे, शार्टिंग करे, एक्स वाई जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है।
اور جنرل پاور آف اٹارنی اسپیسیفکلی سب رجسٹرار جو کہ رجسٹریشن اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس جا کر تکمیل کرانا ہوتا ہے، اور دونوں کو پیش ہونا ہوتا ہے، جو شخص پاور آف اٹارنی دے رہا ہے اور جو پاور آف اٹارنی لے رہا ہے، دونوں کو وہاں پر پیش ہونا ہوتا ہے، اور وہاں پیش ہونے کے بعد وہ وہاں پر ان کے اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کر کے اور وہاں پر وہ پاور آف اٹارنی بنایا جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کینسلیشن یا ریووکیشن آف پاور آف اٹارنی کی، تو اس کی کینسلیشن کی بھی وہی طریقہ ہے کہ جو شخص جس نے پاور آف اٹارنی دیا ہے وہ وہاں پر سب رجسٹرار کے پاس چلا جائے گا اور وہاں پر جا کر اس اسپیسیفک ریزن کو مینشن کرے گا کہ جس کی بنا پر اس کو کینسلیشن کرا رہا ہے، تو وہ اپنی ڈیڈ کو کینسل کرا سکتا ہے۔ اسی طرح کورٹ میں اگر کسی نے پاور آف اٹارنی دیا تو اسپیسیفک کورٹ میں جا کر وہاں پر اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دے گا کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں دعوے کے اندر فلاں کورٹ میں فلاں ڈیٹ کو پاور آف اٹارنی فار رزل آف اپنا دعوے کے لیے پیروی دعوے کے لیے وہاں پر میں نے فلاں شخص کو متعین کیا تھا، لیکن اب میں اس کو ریووک کر رہا ہوں تو کورٹ اس کو کینسلیشن کر دے گی۔ کیس ڈائری ضمنیہ، فوجداری والے دوست بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی ضمنیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں کہ فلاں ضمنی کے تحت فلاں شخص کو ملزم قرار دے دیا گیا اور فلاں ضمنی کے تحت فلاں کو بے گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا، اور فلاں ضمنی کے تحت جو ہے وہ فلاں ایکٹیویٹی کر دی، اور یہ ساری جو ہیں وہ کیس ڈائریز کہلاتی ہیں، ضمنیاں کہلاتی ہیں۔ بیسکلی کسی بھی فوجداری مقدمہ کے اندر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو پولیس اہلکار اپنی مثل ترتیب دیتے ہیں تفتیش مقدمہ کے دوران، تو وہ جب بھی تفتیش کرنے کے بعد اس کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں، ان رائٹنگ لاتے ہیں، تو وہ لکھی جانے والی کیس ڈائریز کہلاتی ہیں۔ ہر دفعہ کی جتنی بھی ہے، چاہے وہ 1 پیج ہے، 2 پیج ہے، 3 پیج ہے، جو اس کی فائنڈنگز ہیں وہ کیس ڈائریز کہلاتی ہیں۔ کاز آف ایکشن ویری ویری امپورٹنٹ۔ کورٹ میں جب بھی کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کاز آف ایکشن کی بنا پر دائر ہوتا ہے، کسی کا رائٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے رائٹ کو لینے کے لیے آتا ہے کورٹ میں کہ اس کا حق سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے، اور جو کسی اور وجہ سے آتا ہے جس کا حق ڈسٹرب نہیں ہوتا، یا اس کو کوئی نقصان پہنچا ہوتا ہے، یا کسی دیگر صورتحال میں جو بھی وجہ ہے جس بنا پر وہ اسپیسیفک کاز جس کی بنا پر مدعی کورٹ کے اندر آیا ہے وہ کاز آف ایکشن کہلاتی ہے۔ بنا دعویٰ کہتے ہیں اس کو، انگلش کے لفظ کاز آف ایکشن کو اردو میں بنا دعویٰ کہیں گے یا بنا نالش کہیں گے۔ فہرست پیشی، کاز لسٹ۔ کورٹ کے باہر صبح لگنے والی لسٹ کو، جس پہ پوری اس دن کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں، ایک سیریل نمبر ہوتا ہے 1 سے لے کر 20 30 40 جتنے بھی کاز لسٹ ہے، یہ سول کیسز ہیں، یہ فیملی کیسز ہیں، یہ جناب علی دیگر مسلینیس کیسز ہیں، تو جتنے بھی وہ سب کے سب کاز لسٹ کہلاتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے، آن لائن سسٹم آ گیا ہے، تو اس پہ بھی کاز لسٹ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سرٹیفائڈ کاپی، مصدقہ نقل، عدالت سے جب حسب ضابطہ کاپی لیتے ہیں، اپیل دائر کرنی ہو یا کسی اتھارٹی کے پاس پیش کرنی ہو، تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ فیصلے کی نقل ہے، انٹرم آرڈر کی نقل ہے، حکم امتناعی کی نقل ہے، کسی بھی عدالتی پروسیڈنگ کی جو کاپی ہوتی ہے، اٹیسٹڈ کاپی، جو کورٹ کلرک آف کورٹ اپنے آفس سے اسٹیمپ کر کے ایشو کرتا ہے، اور اگر دوران دعویٰ کوئی کاپی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے نقل فارم کورٹ سے الاؤ کرانا ہوتا ہے۔ تو وہ پورا پروسیس ہے جو ہمارے قانون کے پریکٹس کرنے والے دوست سمجھتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بڑا یوزفل ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے۔
इसी तरह फर्द जुर्म, चार्ज, क्रिमिनल लॉ में ये इस्तेमाल होता है फर्द जुर्म, कि जब मुलजिम अदालत में आ जाता है तो उस पे चार्ज फ्रेम किया जाता है, उस वक्त ये तो वो निगेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो कोर्ट के इस प्रोसेस को फर्द जुर्म कहते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्राइम की शहादत, एक होती है डायरेक्ट एविडेंस, एक होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि क्राइम बताते हैं, सूरत हाल बताती है कि ऐसे नहीं, ऐसे वो होगा, ऐसे वो होगा। अब एक जगह पे चोरी हुई है, उस चोरी वाली जगह पे एक नामालूम शख्स कुछ देर पहले मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस में ऑफिसर अपनी सीट पर बैठा है और उसका फ़ोन उसने यूज़ किया है और एक जनरल पब्लिक में से कोई शख्स वहाँ पर आया है, तो और उसके जाने के बाद उस शख्स ने देखा कि फ़ोन गायब है, उसका मोबाइल गायब है। उसके बाद वो चला गया वहाँ से उठ के, ऑफिसर भी गया और वो नामालूम शख्स भी गया और कोई आया भी नहीं। अब थोड़ी देर के बाद, इल्म होने के बाद उसका फ़ोन गायब है, तो डेफिनेटली क्राइम शहादत है। आई विटनेस कोई नहीं है, डायरेक्ट विटनेस कोई नहीं है, तो ये क्राइमी विटनेस है, क्राइमी सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको हम कहेंगे, कि फौरी तौर पर उस शख्स के बारे में तासुर उभरेगा कि जो थोड़ी देर पहले आया था वही चोरी करके गया, क्योंकि डेफिनेटली एक रियल पर्सन अपनी चोरी तो कर नहीं सकता और कोई शख्स दफ्तर में आया नहीं। तो ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ये सर्कमस्टांशियल सिचुएशन जो है वो हमें इस तरफ लीड करती है कि हम इसको कुरानी शहादत में देखें। सिविल, सिविल जो है वो दीवानी लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये लॉ की दो मेन ब्रांचेस हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी, मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी एक ऐसा कोड है जिसके अंदर सिविल केसेस को चलाने के हवाले से मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया है। डेफिनेशन से लेकर केस दायरी तक, केस दायरी से उसकी इजरा तक, फैसला तक, फिर इजरा तक, और इजरा में अगर नहीं जाते तो दूसरी पार्टी जो फैसले से मुत्तफिक नहीं है वो अपील भी कर सकती है। फिर अपील जो है फर्स्ट फोरम पे, सेकंड फोरम पे, फिर हायर फोरम पे, और इस दौरान होने वाली एवरी स्टेप्स को बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, और जिसके लिए पूरा का पूरा ये कोड मुरतब किया गया है कि इसको रन करने के लिए, मुकदमा को चलाने के लिए। तो ये ज़ाब्ता मजमूआ दीवानी सिविल प्रोसीजर कोड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निजिबल ऑफेंस। पीपीसी में हमने ऑफेंसेस को देखा, वहाँ पर कॉग्निजिबल को भी देखा, नॉन कॉग्निजिबल को भी देखा। कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है काबिल दस्तंदाजी पुलिस, ऐसा केस जिसके अंदर पुलिस बगैर वारंट हासिल किए मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है, इसको कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस। और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस विदाउट वारंट, अदालत से वारंट हासिल किए बगैर मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो ऐसे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। और जिनमें पुलिस बगैर वारंट मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है उसको हम कहेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।